Hello students, how are you all? Again I am welcoming all of you in this online classes. So today I am here with very new topic of the first chapter of partnership, and the topic name is adjustment in closed account. Adjustment in closed account or past adjustment. Or past adjustment. Till now we have mainly covered profit and loss appropriation account and the components of profit and loss appropriation account, and we also discussed about the charge against profit and appropriation of profit. We have also discussed separately interest on capital, interest on drawings, and as well as partners commission, partners rent, and after that partners capital account with both the methods, means when the fluctuating methods will be used as well as when the fixed method of partners capital will be used. In that cases we have seen that how partners capital will be prepared. Now we are going to start very fresh topic of the first chapter, that is adjustment in closed accounts. And if you will get question in your examination, then at least 4 marks question you will get from this section or from this portion. So what is adjustment in closed account? You all know that in partnership business, when a partnership firm earns profit or loss, then they distribute the profits and losses in their agreed proportion or in their agreed PSR. But before distribution of profit or before distribution of profit and loss, if they make any agreement among themselves, then first of all the agreements are being done by the partners, means all the agreements are provided from that profits. That means I am talking about appropriation of profits. If partners have made agreement that partners have to be given interest on capital, in that case out of profit firstly interest on capital would be provided, then divisible profit will be distributed in their PSR. In the same case, if the partners have agreed that any partner is to get salary, then after providing his salary or after providing the salary to that particular partner, profit will be distributed in the PSR of all the partners. And in the same case, if there is any partner who is getting commission, if there is any partner who is making drawing from the partnership business, then in that case, if interest on drawing is to be taken on partners, then interest on drawing will be charged. Then after, divisible profit will be calculated and it will be distributed. All these things you have done till now. So what is past adjustment? Sometimes when a partnership firm gets profit, they distribute among the partners in their PSR without providing the agreement, without providing all those things which have been made in the agreements. Like if there is any agreement over the interest on capital or any salary regarding the partners, and if partnership firm gets profit and they distribute it among the partners in their PSR without providing the interest on capital, as well as if a partner is to get salary without giving salary to that particular partner, if all the partners share the profits in their PSR, then in that case obviously it will be a loss for the partner who has to get interest on their capital, as well as the partners who has to get the salary from the profit amount. Obviously it will be the loss for that particular partner. तो कभी कभी क्या होता है, अभी समझ गए होंगे कि कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का, उस एग्रीमेंट की सारी चीजें प्रोवाइड करने से पहले ही अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब बाद में ईयर एंड पे जब पता लगेगा
कि किसी एक पार्टिकुलर पार्टनर को सैलरी देना था या सारे पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट दिया नहीं गया, सैलरी दिए नहीं, और इसी तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो इस केस में कभी किसी पार्टनर्स को गेन हो सकता है, कभी किसी पार्टनर को लॉस हो सकता है। जैसे सपोज दैट मैं कहूं देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी and their ratio is 3:2 and firm gets profit of rupees 80,000 and A is entitled to get salary of rupees 20,000 per annum. There are two partners. Their PSR is given 3:2. Profit firm earns profit rupees 80,000, and they have made agreement that A will get salary of rupees 20,000 per annum. But after that, the information is given कि partners distributed this 80,000 rupees in their PSR without providing the salary to A. A को सैलरी देने से पहले ही वो क्या करते हैं, इस 80,000 रुपीज को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस 80,000 में से ए को कितना मिलेगा, यहां निकालते हैं, एज प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट का आउट ऑफ 80,000 इस शेयर इज 3/3 + 2 5 that means 48,000, and in the same case B's profit would be 80,000 multiplied by its proportion is 2/5 16 5 से 50, that means B will get 32,000 and A was to get salary of rupees 20,000 per annum. अब ये 20,000 रुपीज जो ए को मिलना था सैलरी के फॉर्म में वो नहीं मिला, तो जब वो नहीं मिला, अगर मिल गया होता तो ये 20,000 पूरा का पूरा किसको मिलता, बी को मिलता, सॉरी ए को मिलता। लेकिन अगर 20,000 रुपीज ये ए को सैलरी के फॉर्म में नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें से इंक्लूड था। तो अगर ये प्रॉफिट के फॉर्म में इंक्लूड हुआ होगा तो इसमें से कितना 20,000 रुपीज अगर प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो पूरा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3:2 के रेशियो में, तो 3:2 के रेशियो में गया होगा तो इसको कितना मिला होगा 12,000। ए को इसमें से मिल गया होगा कितना 12,000, जबकि बी को कितना मिला होगा 8,000। वही रेशियो है 3/5 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 12,000 मिल गया और इसको 8,000 मिला, जबकि देखा जाए तो इस 20,000 में से पूरा का पूरा 20,000 किसका था, ए का था, सैलरी ए को मिलनी थी। तो बी को जो ये 8,000 मिला है, बी को 8,000 नहीं मिलना चाहिए था। तो इस केस में क्या हुआ कि एक पार्टनर को, यानी अगर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को प्रोवाइड किए बिना अगर प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में किसी एक पार्टनर को गेन हो सकता है, किसी पार्टनर को लॉस हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स तो किसी पार्टनर को गेन हो, किसी को लॉस हो और किसी का न्यूट्रल रिजल्ट हो, न उसे प्रॉफिट हो न लॉस हो। या ऐसा हो सकता है कि इफ 2 पार्टनर्स विल गेट गेन एंड 1 पार्टनर विल सफर लॉस, इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। तो यानी अगर इस तरीके से कभी अगर हो जाए कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो गया, बाद में पता लग रहा है कि एग्रीमेंट की सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की गई, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए अब चूंकि अकाउंट तो मेंटेन हो चुका है, अकाउंट में मिस्टेक, अब दोबारा से पूरा अकाउंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से नहीं बनाएंगे, ओनली वी विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दैट। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर चुके हो पहले भी कि अकाउंटिंग में अगर मिस्टेक होती है तो बाद में जाकर पूरा अकाउंटिंग नहीं कट करते हैं, बल्कि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। यानी अगर मैं कहूँ सीधे सीधे कि इन दोनों पार्टनर में से, बहुत सिंपल चीज है, अभी समझ में आएगी, अगर इन दोनों पार्टनर में से यहाँ पे किसको समझ में आ रहा है, बी को गेन हो रहा है, ए का पैसा जो कि पूरा ए को मिलना चाहिए था उसमें से बी को भी कुछ मिल गया है, तो बी को अगर मिल गया है तो बी का अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए बी को अगर पैसा मिला होगा
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जनरल एंट्री क्या होती है, यही एंट्री होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल आर करेंट अकाउंट, ठीक है ना, एज पर द क्वेश्चन। इसी तरीके से टू बीस कैपिटल आर करेंट अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट का पैसा रहा होगा ऑलरेडी पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया गया। क्रेडिट का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर दिया गया, क्योंकि मैंने बताया था कि पार्टनर्स का कैपिटल ऐड होना या पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाना, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता है। तो इस 8000 का जो गेन हुआ था उससे बी को क्रेडिट किया गया होगा ना, यानी बी का जो क्रेडिट अमाउंट होगा उसमें 8000 वो भी इंक्लूड है, जो कि उसे नहीं मिलना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, इस 8000 को खत्म करने के लिए पार्टनर बी से वो 8000 डिडक्ट करने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट जो ऑलरेडी क्रेडिट किया गया है उसको डेबिट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी इसको 8000 रुपीज दे दिया गया गेन के फॉर्म में, जो कि इसका था नहीं, बाद में पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बी को जो पहले क्रेडिट कर चुके हैं अब वापिस से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, 20 कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये किसने सेक्रीफाइस, किसको लॉस हुआ था, ठीक है, लॉस हुआ था ए को 8000 रुपीज कम मिला था, ठीक है, ए को 8000 रुपीज कम मिला था क्योंकि उसने उसका शेयर बी ने ले लिया था। तो उसका गेन, उसका लॉस जो था, ए का जो लॉस था, यानी ए को उतने कम अमाउंट से क्रेडिट किया गया था। तो जिस पार्टनर को गेन प्रोवाइड करना है, जिसका लॉस हुआ था, अब उसको क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। तो जब कैपिटल किसी की बढ़ती है तो उस पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्योंकि कैपिटल का बैलेंस ही क्रेडिट होता है, तो जब भी इंक्रीज करेगा कैपिटल तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू एज करेंट अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक कॉमन वर्ड में जनरल एंट्री पास करूं, यहाँ तो मैंने पार्टनर का नाम लिखा, तो जनरल एंट्री इसकी बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग और लूजिंग पार्टनर, लूजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो ऑलरेडी गेन कर गया होगा उसको डेबिट कर देंगे, जिसका लॉस हुआ होगा प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसका उतना डिडक्ट हो जाएगा, इसके में उतना ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन हम समझते हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, कैसे पता लगेगा किसी पार्टनर को कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। ये तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, यानी ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। जो अभी तुम लोग कर क्या है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन करते थे। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल and there will be very short question in this topic. Now see that how you will do this question. सबसे पहले इसके लिए हमारा आंसर क्या है, सिर्फ वो जर्नल एंट्री थी उसी का आंसर है, मार्क्स उसी पे मिलना है। बट उस जर्नल एंट्री को पास करने से पहले यानी उस जर्नल एंट्री को पास करने से पहले कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। वर्किंग नोट के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या है, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये ऊपर ऐसे लिखेंगे, वर्क यही लिख देते हैं, वर्किंग नोट एडजस्टमेंट टेबल। अब जितने पार्टनर्स होंगे, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी हैं, तो यहाँ पे ये तो मान लो पार्टिकुलर्स का कॉलम कह सकते हो, ठीक है, जिसमें डिटेल्स होगी कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्टनर ए बी, वन एक्स्ट्रा कॉलम विल बी देयर फॉर टोटल अमाउंट,
फॉर टोटल अमाउंट, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना होगा, एडजस्टमेंट टेबल बनाने का बहुत सिंपल प्रोसीजर समझ लो। सबसे पहली चीज जो एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो छूट गया होगा प्रोवाइड करना, सबसे पहले हम उसको प्रोवाइड कर लेंगे। तो यहाँ क्या छूट गया है, ए की सैलरी छूट गई है, यही था, ए सैलरी छूट गई, तो ए सैलरी ये हम क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमने ये टेबल बनाया है उनकी कैपिटल से एडजस्टमेंट करने के लिए। नाउ टेल मी, इफ ए वुड बी गिवन सैलरी तो हिज कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, जो कि भूल गए थे, पहले हमने उसको क्रेडिट नहीं किया था। तो अब पार्टनर बी को मिल रही है तो क्रेडिट होगा ना, क्योंकि किसी भी पार्टनर को मैंने बताया कुछ भी पार्टनरशिप फॉर्म से अगर मिलता है गेन के फॉर्म में तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ए का सैलरी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्रेडिट, ठीक है ना। ए को ही है, ए को मिलेगा 20,000। बी को कुछ नहीं मिलना है, बी को कुछ देना नहीं था, इसलिए हमने कुछ भी क्रेडिट नहीं किया उसके अमाउंट से। अब ये टोटल अमाउंट, यानी अगर यहाँ पे भी कुछ होता तो टोटल करते, दोनों कॉलम का टोटल करते, यहाँ 0 है, यहाँ 20,000, तो ये हमारा हो गया 20,000। अब ये 20,000, ये देखो जो 20,000 रुपीज किसी पार्ट यानी इस प्रॉफिट में से 80,000 में इस प्रॉफिट में से अगर किसी पार्टनर को 20,000 रुपीज दे दिया गया तो उतने से फर्म का क्या हो गया, लॉस होगा ना, पार्टनर को देना होगा। तो उस 20,000 जो कि ऑलरेडी क्या था, प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका था, क्योंकि 80,000 का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ था तो इसका मतलब ये 20,000 भी उसमें था, डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका था। तो अब वापिस से जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, वापिस से उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे, रिकवर कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। यानी जब डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने एंट्री पास करके दिखाया कि पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा था ना, अब जितना यानी ये 20,000 गलती से दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ था इनके पीएसआर में, अब क्या करेंगे, जो जिस पीएसआर में गलती से क्रेडिट हुआ था वापिस से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्म का शेयर ऑफ लॉस हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, शेयर ऑफ लॉस हो गया, क्योंकि किसी पार्टनर को अगर पैसा दिया जा रहा है फर्म से तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉस है, तो लिखो शेयर ऑफ लॉस। और लॉस क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होता है, ठीक है। अब ये किस लॉस को, यानी 20,000 का जो लॉस आया है वो दोनों पार्टनर सफर करेंगे ना, प्रॉफिट लॉस को सब अपने पीएसआर में करेंगे 3:2 में। तो 20,000 का 3/5 हमने किया था तो 12,000 आया था, तो 12,000 इसका, और इसी तरीके से 20,000 का 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, 8,000, ठीक है। अब ये इस कॉलम से हमको मतलब नहीं है, 20,000 था, हमने बस ये देखा था, ये देखने के लिए टोटल किया था कि कितना अमाउंट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं, ठीक है। नेट इफेक्ट निकालते हैं कि किस पार्टनर का। अब देखो यहाँ पे ए जो पार्टनर है, ए का देखो 12,000 क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस, सॉरी 20,000 क्रेडिट बैलेंस एंड 12,000 इज डेबिट बैलेंस। तो जैसे हम अभी तक उसमें करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी बड़ा फिगर होता है सिंबल हम उसी का रखते हैं। जैसे मान लो -80,000 प्लस 20,000, तो हम कितना लिखते हैं, -60,000, क्योंकि नेगेटिव फिगर बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो 20,000 क्रेडिट है, 12,000 डेबिट है, तो सिंबल किसका होना चाहिए, बड़े वाले का, 20,000। तो ये हमारा कौन सा नेट इफेक्ट में क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कितने का, 20 में से 12 गया तो 8,000, ठीक है। यहाँ डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में कुछ नहीं है ऊपर, और डेबिट के सामने देखो 8,000 है, तो इसका इफेक्ट क्या है, डेबिट है 8,000, ठीक है। बस अब ये डायरेक्टली हमने नेट इफेक्ट देख लिया, इसी की एंट्री पास कर देंगे। बी एंट्री में डेबिट हो रहा है ना, बी एंट्री में डेबिट हो रहा है तो लिखेंगे, बस यही हमारा आंसर है, बीज कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट। पार्टनर की कैपिटल अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड बोलेगा तो लिखेंगे 20 करेंट अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। 2 ए का क्रेडिट बैलेंस आया है ना, तो 2A इज कैपिटल आर करेंट अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे वही 8,000 जो नेट इफेक्ट में अमाउंट आया है,
8,000 यानी 8,000 को बी को पहले गेन हो गया था, ठीक है ना, जो कि अब उसको डेबिट कर दिया गया और इसकी वजह से ए को लॉस हुआ था, ए को पूरा पैसा नहीं मिल पाया था, जो जितना कम मिला था, जितना लॉस हुआ था उतने से उसको क्रेडिट कर दिया, अब उतना उसका अकाउंट बढ़ गया। ये हमारा होता है पास्ट एडजस्टमेंट, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें तो मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन देयर पीएसआर। तो उस केस में क्या मैंने बताया, एडजस्टमेंट टेबल में जो चीज भूल गए होंगे पहले वही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर का कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट होता है उतना हम क्या करते, क्रेडिट करते, और जितना पार्टनर्स को इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा क्रेडिट करेंगे वो एक तरीके से फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो वो टोटल अमाउंट दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट से हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ लॉस को पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे, फिर इस तरीके से नेट इफेक्ट निकालेंगे, ठीक है। सेम इसी के तरीके से पार्टनर्स का कमीशन अगर होगा तो पार्टनर्स का कमीशन भी, ठीक है। सैलरी का एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बुक से, उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आज ही करवा दूंगा, ठीक है। ये सैलरी अगर या कमीशन का अगर क्वेश्चन होगा तो उससे रिलेटेड कर सकते हो। इस टॉपिक का बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन, सॉरी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो तुम्हारी इस बुक में जो हेडलाइन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 35 से शो कर रहा है, जबकि ये टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारे एक्सरसाइज में, कहां से टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 34A से, यानी 33 तक का क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क दिया हुआ था और वहां तक वो मैंने बोला था टॉपिक फिनिश हो गया है। तो ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 34A से स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पे मिसप्रिंटिंग ही मैं कहूंगा बुक की, क्योंकि वो 35 से दे रहा है, जबकि 35 नहीं 34A से इसी टॉपिक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34A देखते हैं, कह रहे ए बी एंड सी वेयर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को शेयर कर देता हूँ। फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट हैविंग बुक्स or students other than Cambridge International School, they can take the screenshot. Okay, question number 34A. A, B and C were partners in a firm share. On 1st April 2018, their capital stood at rupees 4 lakh, rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. There were three partners. As per the provision of the partnership deed, partnership deed में क्या provision था, क्या agreement था, A was entitled to salary of rupees 5,000 per month. Okay, 5,000 per month की salary देनी थी. Partners were entitled to interest on capital 10% per annum. ठीक है, partners को 10% का interest देना था. कह रहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज रुपीज 3 लाख. कह रहा दैट वाज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव आइटम्स, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर. ठीक है, रेक्टिफाई द अबव एरर. अब इसमें क्या बोल रहा है कि देयर वर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. यहाँ क्वेश्चन का इक्वेशन बना लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34A, यहाँ लिख देते हैं 34A. A, B and C. Their capital 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Okay, interest on capital is salary. Is salary 5,000 per month. Interest on capital
10% per annum, 10% per annum, and profit, net profit 3 lakh, net profit 3 lakh. दिस इज द क्वेश्चन. और बोल रहा है कि इस 3 लाख में ये जो अबव एडजस्टमेंट थी या अबव एग्रीमेंट थे, यानी एज सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एग्रीमेंट दिस 3 लाख वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो दैट मीन्स पीएसआर विल बी इक्वल. ठीक है, नहीं दिया तो इक्वल हो जाएगा. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे. कभी भी कोई चीज प्रोवाइड करना भूल जाए तो मैंने बताया एडजस्टमेंट टेबल, ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा. बोला भी है कि पास एंट्री बाय शोइंग क्लियरली योर वर्किंग, यानी वर्किंग नोट दिखाना है. एडजस्टमेंट टेबल. नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स, तो इसके लिए कम से कम हम 4 कॉलम्स तो बनाएंगे. That is for A, B, C and total. A, B, C and total. अब सबसे पहले क्या चीज भूल गए, ए को सैलरी देना भूल गए. ए सैलरी, ए को सैलरी देंगे तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट. क्रेडिट होगा, पार्टनर को सैलरी मिल रही है. ए का सैलरी 5000 पर मंथ, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12. तो क्योंकि मंथली दिया हुआ है, पर एनम हमको करना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 60,000. बी को सैलरी नहीं मिल रही है, सी को सैलरी नहीं मिल रही है, यानी इस लाइन का पूरा टोटल कितना हो गया, या इस रो का पूरा टोटल 60,000. ओके, इसी तरीके से हम देखेंगे. पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ सैलरी थी, जो एग्जांपल मैंने लिया था, उसके बाद ये शेयर ऑफ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. अभी हम देख रहे हैं कि क्या कुछ और भी चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स को क्रेडिट करना था. जितना कुछ क्रेडिट करना होगा सबके सब एक साथ लिख देंगे. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलता है, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री लिख चुके हैं, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, तो यानी कि ये भी इनकी पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करना भूल गए थे, नहीं हुआ था. लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई होप कि समझ में आ रहा होगा. बिल्कुल नया टॉपिक है बट इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 4 लाख पे 10%, दैट मीन्स 40,000. 4 लाख पे 3 लाख पे 10%, 30,000 फॉर बी एंड 20,000 फॉर सी. तो 4 and 3 at 2, 9, sorry 40, 30 and 20, 90,000. ठीक है, that total is 90,000. Now there is nothing to provide. अब कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है. क्वेश्चन में बस यही 2 चीज बोल गए थे, दोनों चीज को हमने क्रेडिट कर दिया. अब ये जो एडिशनल अमाउंट जो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, वो अमाउंट से फर्म का क्या होगा, पार्टनर्स को अगर कुछ अमाउंट देना है तो फर्म का एक तरीके से लॉस है ना, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स का लॉस होगा. ठीक है, इसको यहाँ पे हम पहले टोटल कर देंगे सारे क्रेडिट को. ठीक है, ये हमारा 1 लाख आएगा. ठीक है, इसमें ऊपर कुछ नहीं है, तो ये हमारा 30,000, ये हमारा 20,000. टोटल हमारा हो गया 9 and 60, 1,50,000. इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल क्रेडिट. टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट यही है. ए का टोटल क्रेडिट बैलेंस इतना, बी का इतना, इस तरीके से. अब ये टोटल क्रेडिट के सामने जो बैलेंस दिख रहा है वही क्या होगा, फर्म का शेयर ऑफ लॉस होगा. उसको क्या करेंगे, पीएसआर में डेबिट करेंगे, क्योंकि जब इतना कुछ दे रहे हैं तो ये जो लॉस हो रहा है पार्टनर्स उसको अपने पीएसआर में, और सारे पार्टनर सफर करेंगे चाहे किसी को सैलरी मिले ना मिले. तो इसीलिए इस 1,50,000 को क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ लॉस. शेयर ऑफ लॉस. और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है. किस रेशियो में, तो उसमें पीएसआर में. और पीएसआर यहाँ पे दिया नहीं है, इक्वल मानेंगे. 3 पार्टनर है, 1/3, 1/3, 1/3.
1,50,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000। ठीक है, ये सबका टोटल मिला के हो गया 1,50,000। अब इससे कुछ खास मतलब नहीं रहा, बस टोटल से ही मतलब होता है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? इन एग्जाम्पल व्हाट आई हैव टोल्ड यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट अगेन 1 लाख इज क्रेडिट, 50,000 इज डेबिट। नेट बैलेंस वुड बी क्रेडिट और डेबिट? क्रेडिट। और बड़ा वाला फिगर आएगा, यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट में 1 लाख। अगेन 30,000 क्रेडिट, 50,000 डेबिट, तो नेट वुड बी डेबिट। यहाँ पे हमारा डेबिट होगा। 50 में से 30 गया कितना? 20,000। अगेन 20,000 is less credit amount, debit amount is more, that means excess debit, तो net effect would be debit balance 50,000 out of 20,000 will be deducted out of 50,000, that means 30,000। बस वर्किंग नोट जैसे हमारा कंप्लीट हुआ, इजीली वी कैन पास द एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो यहाँ पे ये दो पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है, बी का 20,000 डेबिट बैलेंस, सी का 30,000 डेबिट बैलेंस, और दोनों का किसको, यानी इन दोनों पार्टनर को ऑलरेडी गेन हुआ था जो कि वापस से डेबिट कर रहे हैं। ए को लॉस सफर करना पड़ा था, इसलिए ए को 50,000 रुपीज दिया जा रहा है जो कि क्रेडिट हो जाएगा। ठीक ना? अब इस क्वेश्चन में देखिए फिक्स कैपिटल दिया या क्या दिया था? ओनली कैपिटल बोला है, तो करेंट अकाउंट की एंट्री नहीं, कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। तो डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से सी का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। ए का क्रेडिट बैलेंस है, तो 2 इज कैपिटल अकाउंट। बी 20,000, सी 30,000 एंड इसके सामने 50,000। तो इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या समझ में आया? बी और सी को ऑलरेडी 20,000, 30,000 के गेन से क्रेडिट कर दिया गया था, वापस से अब इनसे वापस मांगा जा रहा है, तो डेबिट कर दिया गया। ए को 50,000 से कम क्रेडिट किया गया था जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अब उसको नया 50,000 दिया जा रहा है, इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो ग्रुप में मैसेज करके क्वेश्चन या पर्सनल में मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी लोग जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से नहीं है, दे कैन आस्क देयर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं ताकि क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना? ये तो हम किससे रिलेटेड डिस्कशन किए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, पार्टनर्स की सैलरी छूट गया, ऐसे ही पार्टनर कमीशन भी। जैसे मान लो अगर बोलता कि बी को कमीशन मिलना था, तो बी का कमीशन कैलकुलेट करते या दिया रहता अमाउंट, तो जितना रहता उतना उसको भी क्रेडिट करते, तीनों का टोटल करते और तीनों के टोटल से उनके पीएसआर में डेबिट कर देते। क्योंकि पार्टनर का कमीशन भी सिंपली सैलरी की तरीके से ही कमीशन को भी क्रेडिट करना होता है। Past adjustment. Now I'm taking one example. If there are two partners, A and B, their PSR is equal, 1:1. They earned profit of rupees 60,000,
Okay, they are getting profit of rupees 60,000, and partner B is, both A and B are making drawing from the partnership business. A is drawing during the year. A is drawing during the year. ₹20,000, and B is drawing, इसको भी ले लेते हैं, B is drawing during the year. ठीक है, इसका हम ले लेते हैं okay 30,000. A is drawing is 20,000 during the year, B is drawing is 30,000 during the year, and interest on drawing. It was agreed by the partner that interest on drawing would be at the rate 10% per annum. अब ये क्वेश्चन यही है, A and B, ठीक है, their profit was 60,000 and A withdrew 20,000 rupees during the year, B withdrew 30,000 rupees during the year, यानी ड्राइंग की डेट नहीं दिया हुआ है, तो जब ड्राइंग की डेट मिसिंग होती है तो एवरेज बेसिस पे कितने मंथ का, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द एग्रीमेंट इट वाज 10% एट द रेट 10% पर एनम. कह रहे विदाउट प्रोवाइडिंग दिस एग्रीमेंट और विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जबकि होना क्या चाहिए था, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन लोग पे चार्ज करना चाहिए था, जिससे और प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ जाता और उस इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें इंक्लूड करके नए प्रॉफिट के साथ यानी इंक्रीज प्रॉफिट के साथ इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था. ठीक है, इससे क्या हो गया है कि अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 30,000 की ड्राइंग ए कर रहा है, सॉरी बी कर रहा है, तो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा देना पड़ेगा, बी के ऊपर बर्डन ज्यादा है, ए के ऊपर कम है. लेकिन अगर ये सब प्रोवाइड किए बिना अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दोनों को 30,000 रुपीज मिल जाएगा. उस केस में किसको गेन हो सकता है, ए को, बी को गेन हो सकता है, क्योंकि बी ने ज्यादा ड्राइंग किया है लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं उससे दिया गया और उसको भी 30,000 पूरा दे दिया गया. तो ये एक तरीके से क्या होगा, बी के लिए गेन हो सकता है. ठीक है, ये तो क्वेश्चन देखने से पता लगता है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन दिखने से पता नहीं लगेंगे. जब हम टेबल बनाएंगे फाइनली देन वी विल गेट टू नो दैट हु इज गेनिंग पार्टनर एंड हु इज सफरिंग पार्टनर और लूजिंग पार्टनर. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अगेन जो एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए मैंने बोला, एडजस्टमेंट टेबल, 2 partners are there, so there will be main 3 columns. A, B and total. A, B and total. अब क्या प्रोवाइड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है, मैंने कहा जो प्रोवाइड करना भूल जाएंगे सबसे पहले उसी को प्रोवाइड किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को कैपिटल में डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज द लॉस फॉर द पार्टनर्स बिकॉज देयर कैपिटल, देयर बैलेंस ऑफ कैपिटल वुड बी डिक्रीज्ड. इसीलिए हम पार्टनर्स की कैपिटल के किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं. ठीक है, तो इसका क्योंकि जर्नल एंट्री भी इसकी क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. ठीक है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होता है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब देंगे, भूल गए हैं देना, अब देंगे तो वापस से इनकी कैपिटल में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना. सैलरी दे रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, कमीशन दे रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक चार्ज है पार्टनर्स के लिए, पार्टनर को देना पड़ेगा, इसलिए इनको डेबिट करेंगे. ठीक है, अब इनका 10% का है, तो 10% का जब ड्राइंग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि ड्राइंग का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो 6/12. ठीक है, इस तरीके से हमारी ड्राइंग हो जाएगी. तो ये हमारा 1000. ठीक है, इसी तरीके से इसका कितना आएगा, 30,000 का 3,000 आ गया और इसका 6% निकालेंगे तो 1,500 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया 2,500. अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया,
अभी एक से ज्यादा डेबिट तो है नहीं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वहां सैलरी भी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, तो दोनों को ऐड करके हमने टोटल क्रेडिट निकाला था। यहाँ अगर इससे एक से ज्यादा डेबिट होना होता है तो फिर सबको टोटल करते हैं, एक ही है ऑलरेडी टोटल ये किया गया है। अब ये जो डेबिट किया जा रहा है यानी पार्टनर्स से जो लिया जा रहा है, यहाँ पे डेबिट होने का मतलब क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल से लिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए गेन, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आएगा, किससे आएगा, पार्टनर्स लेकर के आएंगे। तो पार्टनर्स लाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म का गेन होगा, और पार्टनरशिप फॉर्म का गेन क्या करते हैं, पार्टनर्स आपस में पीएसआर में क्रेडिट कर लेते हैं, अपनी पार्टनर्स की अपने पीएसआर में अपनी पार्टनर्स कैपिटल पे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो इसलिए ये 2500 का गेन उनके पीएसआर में क्रेडिट हो जाएगा, लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। 2500 को इनको किस रेशियो में बांटेंगे, 1/2। ठीक है, 1:1 का मैंने लिया इक्वल रेशियो, तो 1/2 रहेगा 1250 1250। इससे अब कोई मतलब नहीं रहा, टोटल से मतलब था। यहाँ पे निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में सबसे पहले इसका देखो 1200 क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है, लिखेंगे क्रेडिट कितना 250। इसी तरीके से इसका 1500 1250 डेबिट बैलेंस बढ़ा है, ये हमारा आएगा डेबिट। ठीक है ना, कितना बढ़ा है ये भी 250। ठीक है ना, यानी एक पार्टनर को 250 का गेन हो रहा था, एक को 250 का लॉस हो रहा था। नाउ वी कैन इजीली पास द जर्नल एंट्री। क्या डेबिट करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 250। इसी तरीके से ए का कैपिटल क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना क्रेडिट साइड में 250। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और उससे शेयर ऑफ गेन जो होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरीके से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों साथ में दिया होता है, तब क्या करेंगे। अभी तो हमने एक जैसा क्वेश्चन देखा कि जिसमें सिर्फ पार्टनर्स को क्रेडिट करने वाला आइटम छूट गया था, इसमें पार्टनर्स को सिर्फ डेबिट करने वाला आइटम छूट गया था। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों छूट जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना क्रेडिट करना है ऊपर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना डेबिट करना है डेबिट करेंगे। उसके बाद इन दोनों का नेट में जो टोटल जो हम करते थे, टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट, तो यहाँ टोटल लिखेंगे और देखेंगे कि डेबिट साइड वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी क्रेडिट अमाउंट बढ़ा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो डेबिट कर रहे हैं वो बढ़ा है, तो हम लिखेंगे टोटल क्रेडिट या टोटल डेबिट उसके हिसाब से। और नेट में हमारा जो बैलेंस आएगा वो अगर क्रेडिट वाला बैलेंस बड़ा होगा, टोटल में अगर क्रेडिट वाला बैलेंस आएगा तो वो शेयर ऑफ लॉस होगा, उनके पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन आई थिंक आज के लिए ये इतना वीडियो रहने दो, क्योंकि न्यू टॉपिक है, अभी भी कुछ लोग का पहले का टॉपिक का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ठीक है, सारे लोग जल्दी से जल्दी होमवर्क करके आज सबमिट कर देना, फाइनली सबमिट करना सारे लोग। ठीक है, इसके बाद ये जो आज का होमवर्क है इसको भी कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगेन इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरीके से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर द डे।